Hello. Hi all, this is Thursday Live with me, Dietitian Ramita. Yes, I'm ready to take all your questions regarding breastfeeding week, regarding kids nutrition, whatever queries you have for today, I'm there. Hello. I'm sorry guys, I can't take you in for the live session, but you can ask me your questions. Hi. Hi Anu, Lalita. I'm good, thank you. Hope you all are doing good as well. Can we give Amul Tetra milk to 2-year-old kid daily? I do not suggest that. Please look for some more authentic source, which is maybe some local dairy nearby, because you can't really rely on big brands. Plus, Tetra Pak is something which they've been using certain preservatives, so I do not allow my followers to do that. What I have to do to lose weight? Again, see, the basic of losing weight is that you have to be in a calorie deficit. So definitely focus on your workout, focus on your healthy diet. No one thing can actually make you lose weight. So you have to be in a calorie deficit. You have to eat healthy to lose weight. Hello Sonam, Meenal, Geeta, hi, thank you. Anu's question for you is knee pain. See, people who have knee pain, again, see, for knee pain, first, the very foremost thing is that you have to take care of your diet. So ensure you are eating healthy and ensure some good fats in diet, okay? So like certain nuts and seeds, just take them daily. One oil I would like to share with you if you have lot of knee pain, rather pain in anywhere. So this oil really helps to reduce down the inflammation. So आपको कुछ नहीं करना है, just virgin coconut oil ले लीजिए, उसमें nutmeg oil को mix करो and every single day just massage with this oil. Ensure, because जो nutmeg oil होता है वो बहुत strong होता है, so always do a patch test before applying this and start applying it continuously for 15-20 days and see the difference. I'm good, guys. Thank you. Hi, we eat spicy food. Will the baby get affected like motions? No. It's just don't eat. If your baby is too small, don't eat too spicy food. That might give little gastric issues to baby. But otherwise, generally, do not cause any problem. So, in moderation, you can definitely enjoy your spicy food. Hi, hello Karthik. No, I'm very sorry I'll not be able to add you in the live video, but definitely if you have any question, please feel free to ask. I'm 45 and facing menopause and very severe pain in knees. Anu, please, as I discussed about the oil, yeah, that would work well for you. And menopause, definitely it comes with a lot of hormonal fluctuations. So just try to eat home cooked meals. Put more focus on your sleep, because all the recovery happens during the sleep. So ensure you are sleeping for good 7 to 8 hours, and just do some light yoga every day to heal the symptoms. Can we use cow milk for our family? Yes, definitely. Shabnam, you can use cow milk. But if your baby, if it's about your baby, or if you have any baby in the house who's below 1 year, don't use cow milk. That's it. For other members, definitely you can use. Hi. Okay. So more of questions we have here.
Ma'am, please tell about weight loss after C-section. Yes, definitely. I understand your concern, and it's a little difficult to lose weight after C-section because you can't like immediately start working on it. So अगर बहुत recent C-section हुआ है, so I would tell you to avoid too much of exercise for at least first 4 months. So body को अच्छे से heal होने दो, तब अपनी physical activity पे ध्यान देना. Till then diet would be the best thing. And if you're feeding your child, I would not tell you to restrict too many calories in diet. So थोड़ा सा calorie deficit करना है, create, or eventually gradually you will see the weight loss happening, and if not the weight loss, then the fat loss will start happening. So इस टाइम पे जितना आप lean mass पे work करोगे, जितना better protein लोगे, उतना ही muscle mass बढ़ेगा body का, उतना ही fat कम होगा body से. So include protein in every meal, especially start your day with a protein rich diet. So आपकी breakfast में ज़रूर से protein होना चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो सके और आपका फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट हो सके. एंड जस्ट ट्राई नॉट टू binge on too much of outside food. So 80:20 का रेशियो मेंटेन करो. 80% healthy food and 20% the junk food. Azhar, I'm very stressed every day. I'm sorry to hear that. See, Azhar, I just would want to give you one message here. These days the lifestyle is such कि हर किसी की life में कुछ ना कुछ stress है, right? If I say कि stress मत लो, that would be a wrong word, wrong sentence, because stress अब आपके control में नहीं है. But then how to manage the stress levels is something which can be taken care of. So अगर आपको बहुत ज़्यादा stress रहता है, deep breathing ज़रूर से करो, एटलीस्ट 2 times in the day. one once you get up and one एक रात को सोने से पहले. So जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, so जो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, वो एकदम से नीचे आ जाता है, जिसके लेवल्स एकदम से नीचे आ जाते हैं, और यू फील मच मच बेटर. सो स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग एंड सी द डिफरेंस. Okay. My 2.5-year-old baby is crying regularly, complaining of pain in legs. Doctor is saying these are growing pains. What to do now? A lot of kids have this issue of getting growing pains regularly. छोटी एज में बहुत कॉमन है, होता है. So you just have to massage your baby. So उसकी legs को रोज रात को सोने से पहले मसाज करो. You can't really avoid it, but थोड़ा सा जब हुआ है, so उसको soothe करने के लिए massage really helps. और उसके अलावा you cannot do much. You can try giving him calcium supplement और just check कि विटामिन डी का डोज प्रॉपर जा रहा है कि नहीं. So these two things would help. थोड़ा सा एपिसोड कम हो जाता है पेन का. So just speak to your pediatrician once and कोई भी एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करा के एंड विटामिन डी वो देना शुरू कर दो. Your child would feel much much better. Meanwhile, every night before sleeping उसकी legs को मसाज किया करो. That will soothe him down. Can we have ACV in hormonal imbalance? Yes, definitely, if it suits you. Sometimes in some people it makes people more acidic, so you really have to see. कोई भी चीज़ rather अच्छी या बुरी नहीं होती है. You just have to see if it's suiting you or not. So just give it a try. If it suits you, continue taking that. If it doesn't, stop it. In hormonal fluctuations, definitely there is no harm in taking ACV, but आपको overdo नहीं करना है. Just a teaspoon of ACV is sufficient, and dilute it well. So 1 teaspoon ACV in 1 full glass of water, because अगर diluted नहीं होगा, it can destroy your enamel and your teeth. Some tips for pear-shaped body. Exercise a lot in terms of, we cannot change the structure, but we can definitely shrink the size.
So staircase really helps for the people who have pear shaped body, because उनसे पूरा वो leg का एक toning exercise हो जाता है. So just try, and there should be a specific way how you should be climbing your stairs if you're working on your pear shaped body. So suppose आपकी 15 to 18 stairs हैं घर पे और आप उसके up down rounds ले रहे हो, so it has to be like good 5 to 8 rounds at a time. So आपने बहुत फास्ट ऊपर जाना है और अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करते करते स्लोली नीचे आना है, एंड देन अगेन सो टेक एटलीस्ट 5 to 10 राउंड्स इकट्ठे, एंड दैट वुड हेल्प यू टू लिटिल बिट श्रिंक डाउन योर pear shaped body. Okay, hello ma'am, I'm 21-year-old. थायराइड हुआ था, अब नॉर्मल हो गया, बट मैम नेक फैट, बॉडी फैट और डबल चिन हो गया है. व्हाट कैन आई डू प्लीज? कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है. ओके, सो अगेन आपकी एज बहुत यंग है. इस एज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इज समथिंग मीन्स आप कहीं ना कुछ गलत कर रहे हैं अपनी डाइट में. सो जस्ट इंश्योर कि जो ऑयल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल रिफाइंड ऑयल नहीं होने चाहिए. सो यूज़ योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल्स को यूज़ नहीं करें. वॉक ज़रूर करें. सो आपका डेली स्टेप काउंट इन अ डे शुड बी गुड. आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, बट यू शुड बी एक्टिव इनफ इन अ डे ताकि आपका जो फैट है बॉडी का वो कम हो सके. उसके अलावा 2 थायराइड ठीक है, बट यू कैन टेक गुड सेलेनियम सोर्स. सो आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक स्टार्ट योर डे विद 1 ब्राज़ील नट. और अपने जो नेक वगैरह पे फैट आ गया है, दैट्स मेजरली बिकॉज यू हैव लेस ऑफ मसल मास इन बॉडी एंड मोर ऑफ फैट मास. सो जस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट विद योगा और मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज. आप फेशियल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपना फैट को कम करने के लिए. Can I give dry fruits, cashews and almonds with milk for my 6 months old baby? हाँ, you can definitely give. Just start slow. So एक बार में एक ही नट से स्टार्ट करना. Ensure that's soaked and grounded well. So पीस के या उसको किसी भी उसके सीरियल में या किसी भी मील में मिक्स करके उसको देना है. कुछ बच्चों को नट से एलर्जी रहती है. द बेस्ट वेज टू फिगर आउट इज दैट स्टार्ट स्मॉल. छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करो, एक बार में एक ही नट दो, एंड जस्ट सी फॉर 2 days. इफ नथिंग हैपेंस, नो एलर्जिक रिएक्शन, नथिंग, यू कैन कंटिन्यू. और जब एक एक आपने सेपरेटली दे दिया उसके बाद आप मिक्सिंग ट्राई कर सकते हो. यूरिक एसिड इन थायराइड. For uric acid, apple cider really works well. So you can take along with the balanced diet. So whenever I'm giving you tips, just ensure that the balanced diet and the physical activity are key. So कोई भी एक चीज़ या 2 चीज़ आपको हेल्प नहीं करेंगी unless and until आपकी ओवरऑल डाइट बैलेंस्ड है और आप फिजिकल एक्टिविटी या ओवरऑल डे में एक्टिव रखते हैं अपने आप को, तभी ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी. इफ इट इज जस्ट लाइक वन थिंग, यू आर थिंकिंग कि आप पूरे टाइम बाहर का खा रहे हो बट एक चीज ले रहे हो, सो दैट्स नॉट गोना हेल्प यू. सो जस्ट चेक योर लाइफस्टाइल. ओके, यूरिक एसिड के लिए एप्पल साइडर विनेगर वर्क्स वेल, एंड रॉ पोटैटो जूस दैट वर्क्स वंडर्स ऑन यूरिक एसिड. सो आपने रॉ पोटैटो जूस लेना है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीडियम पोटैटो का. जस्ट ड्रिंक इट, दैट विल हेल्प यू टू फ्लश आउट एक्स्ट्रा यूरिक एसिड. मोरओवर जो हाई प्यूरिन फूड होते हैं, जैसे जो भी सारी हमारी साबुत दालें होती हैं या फिर पीज हो गया, बीन्स हो गया, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, काफ़ी मॉडरेशन में रखना है डाइट में. फॉर थायराइड, अगेन थायराइड का क्या लेवल है उस पर बहुत डिपेंड करता है. अपनी डाइट को बैलेंस रखिए. 2 things what helps you to heal from thyroid is 1, अभी मैंने डिस्कस किया था कि ब्राज़ील नट बहुत हेल्प करता है. सो आप ब्राज़ील नट ले सकते हैं रोज मॉर्निंग में. Another thing would be your virgin coconut oil. So किसी भी चीज़ में या अपनी मील का एटलीस्ट वन ऑफ द मील जो प्रिपेयर इन वर्जिन कोकोनट ऑयल, और वो आपके थायराइड लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है. मैम मेरा बेबी 3 years का है, खाना नहीं खाता एंड बहुत परेशान करता है. यूजुअली छोटे बच्चे फसी होते हैं एंड इट टेक्स टाइम फॉर देम
to start eating. What we have to understand is कि बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत नया है, राइट? उन्होंने कभी कुछ नहीं खाया, वो फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी. फॉर अ चाइल्ड इट्स नॉर्मल टू टेक एटलीस्ट 16 एक्सपोजर टू स्टार्ट लाइकिंग न्यू फूड. So you just have to keep trying and trying with a very small quantity. Make sure कि जो experience है overall वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए. बहुत ऐसा नहीं कि वो पूरे टाइम रोए जा रहे हैं, यू आर पुशिंग योर चाइल्ड हार्ड टू ईट. उससे बच्चा और नेगेटिव हो जाता है और वो और ज़्यादा खाना छोड़ देता है. सो बी वेरी वेरी पेशेंट एट दिस टाइम. जस्ट टेक योर चाइल्ड इन कॉन्फिडेंस. उसको समझाओ, उसको किचन में अपने साथ इन्वॉल्व करो, उसको ग्रॉसरी में अपने साथ लेके जाओ. सो जितना मल्टीपल एक्सपोजर्स रहेंगे बच्चे के अराउंड द फूड, उतना ही बच्चा कंफर्टेबल होता जाता है खाने के लिए. एंड एक और चीज़, जब भी आप बच्चे को कोई भी नई चीज़ दे रहे हो, डोंट प्लीज एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू हैव अ बिगर क्वांटिटी. वो एक नई चीज़ है जिससे बच्चा एकदम से कंफर्टेबल नहीं होगा. सो एनीथिंग न्यू, जस्ट 2 things to remember. One should be in a very small quantity, like a pea size thing, so a child is not overwhelmed to see that. And another, it has to be combined with some of the favorite food of your child. So कभी अलग से नहीं दो. अगर कोई favorite meal के साथ दोगे, then it would be a higher probability for the child to accept that new food. मैम, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है एक्सरसाइज एंड वॉक करने के बाद भी, शुगर भी नहीं लेती हूँ. शुगर ही नहीं सिर्फ रीज़न वेट ना कम होने का. अगर वेट नहीं कम हो रहा, सो ईदर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो, या कहीं ना कुछ लैग है, या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, राइट? हार्मोन्स क्या करते हैं, दे सेंड सिग्नल टू द ब्रेन ताकि हर ऑर्गन एक राइट वे में एक्ट कर सके. अगर सिग्नल ही ठीक नहीं आएगा तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, राइट? सो एट टाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं जिसकी वजह से वेट कम नहीं हो रहा होता. एट टाइम्स हमारी गट हेल्थ बहुत सपोर्ट नहीं कर रही होती, बिकॉज सारा का सारा डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हैपन्स इन द गट. सो अगर वही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ठीक से जो खाना है वो हमारी बॉडी में जाके अब्सॉर्ब नहीं हो पाता. सो इफ दैट्स द केस, आई वुड से टेक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट. आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, कोई भी डाइटिशियन से मिल सकते हो, और यू कैन रीच आउट टू मी. मेरे को और भी क्वेरीज आई हुई हैं कि हम लोग प्लान कैसे देते हैं, तो मैं डिस्क्राइब वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. सो हूसोएवर इज इंटरेस्टेड कैन रीच आउट टू मी. सो आप अगर इंटरेस्टेड है, यू कैन DM me your number and we'll reach out to you with details. कुछ भी नहीं है. Initially we are gonna schedule a detailed call to understand more about you and your needs, आपकी medical issues, आपकी choices, likings, your preferences, day routine. उसके बाद we are gonna make a diet plan which would be specially customized to you according to your needs. We are into weight loss as well as all medical conditions. So कुछ भी अगर आपका इशू है, you can directly reach out to me. आप अपना नंबर भेज सकते हैं. We are into kids nutrition also. So अगर कोई kids से related query है या kid का diet plan आपको customize कराना है, then also you can reach out to us. Okay, so if your height is 5'2" and weight 62, then you should be 5'2" height के according आपका weight approximately 55-56 kgs के आसपास होना चाहिए. But that also depends कि आपका कितना मसल मास है बॉडी में. सो इफ़ यू आर समबडी जो एक्सरसाइज बहुत करते हो, सो आपका थोड़ा सा हायर एंड पे भी हो सकता है वेट. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, देन 55 इज गुड फॉर यू. Hi ma'am, if we eat spicy food, green chilies, green leaves, will the baby get affected? अगर तो बेबी बहुत छोटा है, okay, so like few months, then I would say just avoid too much of spicy. आप ले सकते हो, मॉडरेशन में ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना. बट ग्रेजुअली जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपने आप सॉलिड्स आप में लेने लगते हैं, तो वो आराम से ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिपेंड्स कि वो कितना लेवल का आप स्पाइसी फूड उनको दे रहे हो. प्रेफर डेफिनेटली ग्रीन चिलीज ओवर रेड चिली एंड ऑल दैट, सो दैट हेल्प्स मोर.
My belly has come out since I stopped milk feed. What should I do? Usually जो post pregnancy का weight होता है वो अब स्पेसिफिकली आपके abdomen एरिया पे रहता है. दैट्स कॉल्ड visceral fat. Now visceral fat is something what surrounds the organs. Okay, so that is important, but कितना होना चाहिए, that's something to be taken care of. So अगर आपका belly fat ज़्यादा है, so one, physical activity. And when I'm saying physical activity, not like a 1 hour high intensity workout you need to indulge in, but आप पूरे दिन में अपने आप को कितना एक्टिव रखते हो उस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना विसरल फैट है. सो जस्ट अपने आप को जस्ट इंश्योर यू आर नॉट सिटिंग फॉर मोर देन 1 hour एट अ टाइम. सो अगर आपको बैठे हुए टाइम हो गया, सो जस्ट गेट अप वंस, गिव अ नाइस स्ट्रेच टू योर बॉडी एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग अगेन. सो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है. देन अनदर थिंग, बेली फैट के लिए आप थोड़ा सा कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए ट्राई कीजिए. सो थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऑफ कोर एंड डेफिनेटली टेक अ हाई प्रोटीन डाइट, डेफिनेटली विद कार्ब्स. आई एम नॉट सेइंग कि आपको कार्ब रिस्ट्रिक्शन रखना है, बट इंश्योर यू आर टेकिंग प्रोटीन इन एवरी मील. दैट वुड हेल्प यू टू बर्न दैट एक्स्ट्रा फैट विच इज अराउंड द ऑर्गन्स. सो बेसिकली द एब्डोमिनल फैट. Thank you so much, Kanika. 5-year baby often complained about pain in leg. जसमीत, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन एक्चुअली किसी का लिया है. सो यूजुअली इस एज में पेन्स रहते हैं किड्स में, एंड दैट्स नॉर्मल बिकॉज दे आर ग्रोइंग पेन्स. But still you can check with your doctor if you need to give him calcium and vitamin D supplements. So उससे थोड़ा सा कम हो जाता है and kids are little relieved. मैम प्लीज़ बताओ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है एक्सरसाइज करने के बाद एंड मैं डाइट भी ले रही हूँ. निशा, दैट केस मे बी थोड़े से हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होंगे. सी, हमेशा बॉडी में सिर्फ वेट पे डायरेक्टली काम करने की ज़रूरत नहीं होती. सो अगर आपको काफ़ी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है, सो इट्स बेटर टू हील, टू रिकवर योर बॉडी फर्स्ट. ठीक है. सो अगर आप आई गेस यू शुड बी रीचिंग आउट टू मी डायरेक्टली ऑन दिस, बिकॉज विदाउट नोइंग द होल हिस्ट्री आई वुड नॉट बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट. सो अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू DM और आई विल हेल्प यू, आई विल असिस्ट यू हाउ टू लूज वेट. सो डोंट डायरेक्टली वर्क ऑन द वेट लॉस, वर्क ऑन योर गट हेल्थ, वर्क ऑन योर हार्मोनल हेल्थ टू फर्दर कीप लूजिंग योर वेट. यस, यूजुअली ग्रोइंग पेन्स पे किसी तरह का मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है. कभी कभी बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा फसी ईटर्स रहते हैं, सो उनका न्यूट्रिशन पार्ट बहुत अच्छा नहीं होता. सो जस्ट टू सी कि अगर आपका बच्चा थोड़ा फसी ईटर है, सो गिविंग कैल्शियम सप्लीमेंट माइट हेल्प एंड विटामिन डी. अदरवाइज भी पीडियाट्रिशियन ईयर में एक बारी रिपीट करा देते हैं विटामिन डी का, बट अगर बहुत टाइम से नहीं दिया है, सो यू कैन इवन प्लान गिविंग विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट. वो हेल्प करता है बच्चों की. Can you please mention portion size of food for 14-month-old? See, there is no portion size for anybody. अगर आप हमारी एज में भी आके देखोगे, there are people who are eating just 1 chapati, there are people who are eating 3 chapatis, right? So कोई specific portion size नहीं होता है. Your job as a parent should be what's to be given to your child, and it's child's responsibility, child's work to decide how much to eat. You don't have to think about कि कितना खा रहा है. जितना भी खा रहा है, let your child have. You just plan what to give. So the meal should be nutrient dense, the meal should be energy dense. That's the only thing what you can work on. What's the reason for vitamin B12 deficiency? Vitamin B12 के ज़्यादा sources non-vegetarian में रहता है. So people who are vegetarian, उनको vitamin B12 की deficiency हो जाती है. So if you are the one who's vegetarian, it's a good idea to take supplementation for that. Usually आजकल देखा जा रहा है कि non-vegetarians को भी B12 की deficiency हो रही है. वो तब होती है जब गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. सो प्रॉपर तरीके से जो हम फूड खा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, असिमिलेट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से आजकल बहुत ऑफन डेफिशिएंसीज देखी जा रही हैं. सो अपनी गट हेल्थ पे वर्क कीजिए. एट द सेम टाइम इफ यू आर डेफिशिएंट इन B12, स्टार्ट टेकिंग द सप्लीमेंटेशन.
Does menopause start at 33 as I'm facing spotting periods every month in spite of doing proper workout and diet? थोड़े केसेस में देखा गया कि प्री मेनोपॉजल फेज में एंटर कर जाते हैं अराउंड 35 की एज में सम पीपल, बट दैट्स नॉट अ हेल्दी थिंग. इतनी जल्दी नहीं एंटर करना चाहिए. Might be some hormonal fluctuations, not necessarily menopause. So work on your hormonal health, work on your estrogen and progesterone. If you need any professional help, you can reach out to us. Okay. मुझे 20-22 डेज में पीरियड्स आ जाता है. व्हाट टू डू? द वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी टू सी द गायनी, बिकॉज एक बार वो स्कैन करा के देखेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज. अगर हमेशा से साइकिल इतना ही रहा है दैट्स नॉर्मल, बट अगर पहले ठीक आता था और अब छोटा हो गया है देन यू नीड टू गेट योर सेल्फ एग्जामिन वंस टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रिगरिंग दैट. Hi ma'am, I have PCOD. How can I cure it without medicine? Definitely with good diet. PCOD is a lifestyle issue. So अगर आपका lifestyle अच्छा है, अगर आप diet अच्छी लेते हैं, अगर आप physical activity करते हैं, if you are taking care of your stress levels, your sleep patterns, so if you are keeping your whole lifestyle in check, then it's much easier to reverse your PCOD. And trust me guys, easily reverse हो जाता है if you are taking a good diet. So not necessarily that you will be needing a medication for that. You can just improve your lifestyle first and see if that's helping you. प्लीज़ सीवियर एसिडिटी के बारे में बताएं. अगर किसी को भी एसिडिटी के इश्यूज हैं, सबसे पहले तो सिट्रस थोड़ा सा अवॉइड करो. एंड अनदर थिंग, टेक रॉ पोटैटो जूस. सो अपनी मील से हाफ एन आवर पहले, स्पेशली बिफोर लंच एंड डिनर, जस्ट टेक 2 spoons ऑफ रॉ पोटैटो जूस एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन हैव योर रेगुलर मील. सो उससे काफ़ी हद तक आपका एसिडिटी इंप्रूव हो जाता है. Okay. Belly fat after C-section. I guess we have discussed a lot about belly fat, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में भी डिस्कस करती रहती हूँ बिकॉज दैट्स ए कॉमन थिंग व्हाट कम्स अप टू मी कि वेट कम हो जाता है बट बेली फैट रह जाता है. सो अभी भी जो मेरी कल की भी रील डली है, जस्ट हैव अ लुक. उसमें डिटेल्ड मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है कि क्या रीजंस होते हैं बेली फैट के और उसको किस तरह से उस पर वर्क किया जा सकता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू माई येस्टरडेज रील. इट्स कवरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. Another question on belly fat, the same thing. 20 months बेबी, मेरा बेबी अभी तक बात नहीं करता है. इट्स ओके, डॉक्टर प्रिस्क्राइब टू से थेरेपी बट आता है. थेरेपी यूजली कभी कभी क्या होता है 20 मंथ्स में अगर थोड़े बहुत लाइक कुछ वर्ड्स भी बोल रहा है बेबी, लाइक मामा पापा, थोड़े थोड़े वर्ड्स भी बोलता है तो ठीक है. यूजली 24 मंथ्स के बाद डॉक्टर थेरेपीज के लिए बोलते हैं अगर बिल्कुल नहीं बोल रहा है. बट आई वुड फर्स्ट सजेस्ट कि थोड़ा सा उसका एक्सपोजर अराउंड द पीपल बढ़ा दो. सो किसी तरह का जैसे वो 1 hour प्ले टाइम्स वगैरह होते हैं ना, वेयर ही इज एक्सपोज टू लॉट ऑफ किड्स अराउंड, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आसपास रखो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने एंड ही गिव इट अ ट्राई टू स्पीक सर्टेन वर्ड्स. सो अगर जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर फ्यू मंथ्स, अगर फिर भी आपको बेनिफिट नहीं लगता देन यू कैन गो फॉर थेरेपीज. बेली फैट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आफ्टर सी सेक्शन. मैंने रील्स में आजकल यही कवर कर रही हूँ एंड आई विल टेक अप मोर लाइक डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट सो इट कैन हेल्प यू. सो जिन लोगों को भी क्वेरीज हैं ऑन बेली फैट, just stay tuned and we'll be covering a lot of information in reels. उसके अलावा you can directly reach out for diet plan to me wherein I'll specifically work on your extra fat in body. Okay, so it's already 1 o'clock. Time for me to take a leave now.
I hope I have answered all your queries. जिन लोगों की थोड़े से questions रह गए हैं guys, you can directly DM me. As I say in every week's live, आप मुझे directly DM करो. I'll answer to all your questions. I really apologize if I couldn't take few of the question as we have limited time with us. So have a very, very, very nice day. I'll take a leave now. See you soon the next week, same time. Thank you. Bye-bye.